علامہ ارشد القادری کا مجھ پہ فیض برسا تو دیوبندیت سے توبہ کر کے ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن کو تھام لیا۔ اللہ کی قسم میری حیرانگی کی انتہا نہیں تھی کہ وہ نماز جو اہل حدیث دوست مجھ کو بتایا کرتے تھے، اللہ اکبر، بخاری کے اندر تمام وہ حدیث موجود تھی۔ ہاتھ کندھوں تک اٹھانا ہے، سینے پر باندھنا ہے، اونچی آمین کہنی ہے، قدم سے قدم ملانا ہے۔ وہ میرے محترم بھائیوں، میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ، آج سے پہلے جو نماز پڑھ رہا تھا حنفیت کے اندر، دیوبندیت کے دنوں میں، اللہ وہ نماز اس بخاری میں کہاں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا، بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سے 100 سال پہلے کوئی اہل حدیث نہیں تھا، آج سے 100-150 سال پہلے کوئی دیوبندی جماعت بھی نہیں تھی، لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں دیوبندی جماعت کی ایک اچھی خاصی پکڑ ہے، اور اہل حدیث والوں کی بھی ایک اچھی خاصی پکڑ ہو گئی ہے۔ آخر لوگ بریلویت کو چھوڑ کر دیوبندی جماعت میں کیوں شامل ہوتے ہیں، اہل حدیث میں کیوں شامل ہوتے ہیں؟ ایک اہم سوال ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے وہی چیز دکھانے والا ہوں کہ جو لوگ دیوبندیت کو چھوڑ کر اہل حدیث میں شامل ہوئے ہیں، بریلویت کو چھوڑ کر دیوبندیت میں شامل ہوئے ہیں، آخر کیوں شامل ہوئے؟ پہلے چلے ان کی باتوں کو سن۔ دیکھیے، جیسے دوسرے ہوئے ویسے ہم بھی ہوئے، معلوم نہیں تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، چل رہے تھے، کوئی چل رہا ہے اس کے پیچھے دیکھا نہیں کون ہے کیا ہے کہاں لے جا رہا، چل رہے تھے اپنا۔ پھر کچھ کتابیں ملیں، کچھ لوگ ملے جن سے بات ہوئی، پھر علماء سے رجوع کیا، علماء نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ایسا ہے، لمبی کہانی ہے، اس کو آپ کو اختصار سے کہاں بتائیں، پہلے اختصار سے جواب دینا ہے۔ علماء سے، میں تبلیغ جماعت میں تھا، دیوبندی تھا، اور 4 مہینے چلے، 3 دن، 1 دن، 2 دن سب لگا کے بیٹھا ہوں۔ وہ بھی بیچارے محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی روشنی کی توفیق دے جو ہم کو ملی ہے، اور بہت قربانیاں دیتے ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ ہم کیونکہ خود جا کے آئے ہیں، اس لیے ہم کو معلوم ہے کہ وہاں رہنے والا آدمی خود اندر سے اس کے اندر تمنا ہوتی، تڑپ ہوتی ہے کہ لوگ واقعی دین پر آئیں۔ تو ہم کو معلوم نہیں تھا ہم کیا کر رہے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آدمی کو خود معلوم نہیں تو میں کون ہوں، تو ہم کو بھی خود معلوم نہیں تھا کہ واقعی دین کیا ہے، جو بڑے بتائیں وہی دین ہے، ہم یہ سمجھتے تھے۔ لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ نہیں، قرآن و سنت ہی اصل الاصول ہے، یہی دین کی اصل بنیاد ہے، اس کے بغیر دین کا تصور نہیں ہے۔ پھر جب علماء سے بات کی، صحیح طور سے جواب نہیں ملا، اور علماء نے جواب نہیں دیا جو وہاں علماء تھے، پھر اس کے بعد خود سے تحقیق شروع کی، پھر اہل حدیث علماء ملے، کتابیں ملیں، ان میں غور و فکر کیا، ان کو پڑھا، اہل حدیث علماء کی طرف رجوع کیا، ان سے بالکل اطمینان بخش جوابات ملے، ہم اہل حدیث ہو گئے، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تک ہم کو اسی منہج پر باقی رکھے۔ سیدھا سادہ سا نوجوان تھا، دیوبندی تھا، بس مجھے اتنا پتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند، بس اتنا مجھے معلوم تھا۔ کبھی اپنی کتابوں کو کھول کے نہیں دیکھا تھا، کبھی مجھے اس بات کی جستجو نہیں ہوئی تھی کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، کیا یہ نماز قرآن و کیا یہ نماز احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے؟ لیکن جب ان دوستوں نے جو اہل حدیث مجھے ملے، انہوں نے نشاندہی کی، میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی۔ انہوں نے ایک کتاب مجھ کو دی، نماز نبوی، وہ کتاب لے کر میں پہنچا ایک مدرسے کے اندر۔ میں نے کہا مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ میں جس طرح سے نماز پڑھتا ہوں اور پڑھ رہا ہوں، اس کے دلائل کیا ہیں؟ آپ مجھے کچھ دلائل دیجئے، کیونکہ دیکھیے یہ کتاب مجھے اہل حدیثوں نے دی ہے، نماز نبوی اس کا نام ہے، اس کے اندر سارے ریفرنسز موجود ہیں کہ اگر آمین بالجہر، اونچی آمین کہہ رہے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے، اگر ہاتھ کندھوں تک اٹھا رہے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے، سینے پر باندھ رہے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے، قدم سے قدم ملا رہے ہیں تو کہاں پر کون سی حدیث موجود ہے؟ اس نماز نبوی میں پوری نماز کا طریقہ ود ریفرنسز، حوالوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور سارے حوالے حدیثوں سے، اور احادیث کے اندر بھی جو بخاری سب سے بہترین کتاب، اس کے حوالے۔ ہمارے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا، چونکہ میں اس ٹائم ایک عام سا انسان تھا، میری دینی وابستگی اتنی نہیں تھی، دنیا دار سا ایک نوجوان تھا، تو مولوی صاحب نے ایک بات کہی، جو دیوبندی مسجد کی بڑی مسجد کے امام تھے، انہوں نے کہا بیٹا بات سنو، بات یہ ہے کہ حوالے جو تم مانگ رہے ہو تو ہمارے پاس حوالے تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک بات سن لو، تم اس وقت دارالافتاء کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، دیکھو تمہارے چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں موجود ہیں، تو حوالے ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن تم ایک بات یاد رکھنا کہ ایک واقعہ سن لو۔ میں نے کہا جی فرمائیے، کیونکہ اس ٹائم دماغ جو تھا وہ تقلیدانہ دماغ تھا، تقلیدانہ روش اندر موجود تھی، لہذا اپنے مولوی صاحب کی بات کو بڑے توجہ سے میں نے سنا۔ انہوں نے کہا کہ ایک رات امام غزالی کے پاس شیطان آیا، اور شیطان نے آ کر امام غزالی کو کہا کہ غزالی آج کی رات تو اللہ کی وحدانیت پر مجھ سے مناظرہ کر لے۔ امام غزالی نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے 99 دلائل دیے، اور شیطان نے 99 کے 99 دلائل کو رد کر دیا۔ بالآخر غیب سے یہ آواز آئی، اے غزالی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ ہم بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ امام غزالی نے کہا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ شیطان اسی وقت رفو چکر ہو گیا۔ میں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ میں اس سے کیا مطلب ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات، میں تو آپ سے دلیل مانگنے آیا ہوں کہ
पूरा वाकया आपने सुनाया, मुझे बात समझ नहीं आई। कहने लगे बेटे बात यह है कि तुम उन वहाबियों के पास जाओ, उन अहले हदीसों के पास जाओ और उनको जाकर ये बात बोल दो कि बस मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं देखना, बस मुझे इतना मालूम है कि देवबंद हक और सच है, देखना शैतान की तरह वो भी तुम्हारे पीछे से भाग जाएंगे। मैंने कहा यार बात तो बड़ी खूब है, मैं क्यों इन चक्रों में पड़ूं? मैं अपने वालिद के उस फलसफे के ऊपर क्यों ना आ जाऊं कि अपने मजहब को छोड़ना नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ना नहीं। मैं सुकून से इत्मीनान की जिंदगी गुजारने लगा। उन दोस्तों से, अहले हदीसों से मैंने दोस्ती रिश्तेदारी दूर कर दी, उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया। लेकिन एक दिन बुखारी मेरे सामने आई, मैंने किताब को खोला बुखारी को, उसमें नमाज का चैप्टर था। मैंने बुखारी के अंदर नमाजें देखना शुरू की। अल्लाह की कसम मेरी हैरानगी की इंतहा नहीं थी कि वो नमाज जो अहले हदीस दोस्त मुझको बताया करते थे, अल्लाह अकबर, बुखारी के अंदर तमाम वो हदीस मौजूद थी। हाथ कंधों तक उठाना है, सीने पर बांधना है, ऊंची आमीन कहनी है, कदम से कदम मिलाना है। वो मेरे मोहतरम भाइयों में हैरान हो गया। मैंने कहा या अल्लाह, आज से पहले जो नमाज पढ़ रहा था हनफियत के अंदर, देवबंदियत के दिनों में, अल्लाह वो नमाज इस बुखारी में कहाँ है? बुखारी तो इतनी बेहतरीन किताब है कि देवबंद भी कहता है बुखारी टॉप ऑफ द लिस्ट बुक है। देवबंदी, बरेलवी, हनफी, शाफई, हम्बली, सबका ये यकीन है, ये कहना है कि कुरान के बाद इस धरती के ऊपर अगर कोई सही तरीन किताब है तो सही बुखारी है। और मेरी नमाज कहाँ है जो मैं 20 साल से पढ़ता आ रहा हूं? बुखारी के अंदर मुझे मेरी नमाज नहीं मिली। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बात मैं ये आपसे करना चाह रहा हूं कि फ़िक़्ह हनफी के गलत मसाइल का पोस्टमार्टम क्यों जरूरी है। फिर मैंने कुछ किताबों के साथियों ने मुझे हवाले दिए, वो किताबें मैंने खोल के देखी, अपने उलमा की, अपने मसलक के उलमा की, उन किताबों को मैंने देखना शुरू किया। वो अल्लाह की कसम है, मैं हैरान हो गया कि वो किताबें कि जिनकी मैं तालीम दिया करता था, अल्लाह अकबर, मुझे वो मसाइल उन किताबों में ना मिले। फिर दीन की तालीम हासिल करने का शौक हुआ और दीन की तालीम हासिल करने की कोशिश में लग गया, जुस्तजू में लग गया, मदारिस के अंदर पहुंचा, जामिया सत्तारिया। वहां पर अल्लाह की दी हुई तौफीक से, चूंकि इस दौरान मैंने उलमा की सोहबत इख्तियार कर रखी थी, इस दौरान अल्लाह की तौफीक से कुछ दीन का इल्म सीखना शुरू कर दिया था। अल्लाह की तौफीक से तीसरे दर्जे में दाखिला मिल गया। अल्लाह ने और तौफीक अता फरमाई, उलमा इकराम का साथ मिलता गया, तहकीक करता गया। अपनी वो किताबें देखकर मैं हैरान हो गया कि जिनको पढ़कर मैं लोगों के सामने तालीम दिया करता था, खासकर फजाइल आमाल जैसी किताबें, फजाइल सदक़ात जैसी किताबें, उनके अंदर जब मैंने देखना शुरू किया कि यार इसके अंदर इतना कुफ्र लिखा हुआ है, इतना शिर्क लिखा हुआ है, इतनी खुराफात लिखी हुई है, मैं हैरान हो गया कि या अल्लाह, इन किताबों की मैं कल तक तालीम देता था, आज मुझे महसूस हुआ, आज मुझे मालूम हुआ कि इन किताबों में कितना शिर्क लिखा हुआ है, इन किताबों में कितनी खुराफात भरी हुई है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि इन बातों को आगे पहुंचाऊं। और क्या पूछते हैं कि आप अहले हदीस कैसे हुए, लंबी दास्तान, लेकिन अगर एक हरफ के अंदर बात कहूं तो एक हरफी बात यह है, जब हदीस नहीं पढ़ी थी अहले हदीस नहीं थे। जब हदीस नहीं पढ़ी थी अहले हदीस नहीं थे। अहले हदीस उस वक्त बने, निकले हदीस पढ़ने के लिए, जब हदीस को पढ़ेंगे और हदीस पढ़कर अहले हदीस का मुकाबला करेंगे। हदीस किस लिए पढ़ेंगे? अहले हदीस का मुकाबला करेंगे। खुदा की कसम है, जब मैं हदीस पढ़ना शुरू हुआ, मैंने देखा, बुखारी शरीफ को उठाया, वहां पर मुझे अहले हदीस का मसलक नजर आया। मुस्लिम शरीफ को उठाया, अहले हदीस का मसलक नजर आया। अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी को उठाया, अहले हदीस का मसलक नजर आया। सिहा सित्ता, दूसरे दर्जे, तीसरे दर्जे, चौथे दर्जे की किताबों को उठाया, वहां पर मसलक अहले हदीस नजर आया। जू मैं हदीस की किताबों को पढ़ता रहा, मसलक अहले हदीस खुलता रहा। अगर एक बात के अंदर मैं अपनी दास्तान बयान करूं तो ये बात मैं कह सकता हूं, जब मैंने हदीस नहीं पढ़ी थी, मैं अहले हदीस नहीं था। जब मैंने हदीस पढ़नी शुरू की, अल्लाह ने इसकी बरकत से मुझे अहले हदीस बना दिया। मैं हदीस पढ़ाता रहा, इन किताबों को पढ़ाता रहा और समझ में आता रहा। हमारे सामने भी बात वही थी जो आज है कि अगर हम हक बोल देते हैं तो हमारे साथ ये होगा, वो होगा, हक पर चलेंगे तो समाज हमको यूं कर देगा, उलमा ये कर देंगे, लोग ये कर देंगे। लेकिन मेरे सामने में एक मसला था कि मरना तो मुझे बहरहाल है और जाना अल्लाह के पास है। मेरे खाते में नमाज ना हो, मेरे खाते में इत्तबाए रसूल ना हो, इत्तबाए रसूल के बजाय कुछ और की तवा हो, नमाज हमारी फालतू चली जाए, तो अल्लाह के हम किस मुंह को लेके जाएंगे? अब सोचिए, अमली तजर्बा। आप लोग पूछते रहते हैं कि आप अहले हदीस क्यों? अरे मैं अहले हदीस हुआ ही नहीं था कभी। मैंने तो दीन को जब समझा, जब मैंने तजाद देखा ना, हदीस और कुरान का टकराव देखा, और मैंने फैसला कर लिया अंदर ही अंदर कि मैं कुरान और सुन्नत पे चलूंगा, साहबा वाला इस्लाम। मुझे क्या पता था अहले हदीस क्या होता है?
हमको तो बचपने से पढ़ाया गया कि अहले हदीस गुस्ताख रसूल होता है, यहूदी होता है, रसूल को मानता ही नहीं, इसलिए हमने कभी झांक के देखा ही नहीं। किसी अहले हदीस को देखते रास्ता मोड़ लेते थे कि सलाम न करना पड़ जाए भैया, इनके सलाम से निकाह टूट जाता, और यही सिखा रखा था, ये धोखे में सलाम कर लिया बीवी हाथ से निकल जाएगी। तो जब हिदायत हमको मिली, हमने जब समझा कि कुरान और सुन्नत पर चलना ही दीन है, हमने चुपके से इस्तीफा दिया, घर पहुंच गए। तो 2 साल के बाद मेरी तकरीर हो रही थी, कहीं पर एक अहले हदीस ने सुना और उसने मुझसे कान में आकर कहा कि हजरत, सुबह मेरे घर आया, उसने कहा कि रात जो आपने तकरीर की है ना, वो बिल्कुल मेरे मौलवी जैसी की है। तब दिल में ख्याल आया इसके मौलवी को भी आजमा के देखें, और देखा, और तब पता चला कि यार हम तो अहले हदीस हो गए। 2005 ईस्वी तक मैं और मेरे घर वाले अहमद रजा खान बरेलवी के बनाए हुए फिरके को फॉलो करते थे। इस फिरके का नाम है बरेलवी फिरका, जो अपने आप को उस फिरके में थे। 2005 के बाद मैं तबलीगी देवबंदी फिरके में शामिल हुआ और 2 साल तक 2005 से 2007 ईस्वी तक मैं तबलीगी देवबंदी बना रहा। 2007 के आखिर में जमात अहले हदीस के भाई लोग मिले और बताने लगे कि आप पहले भी शिर्क और बिदअत खुराफात में ही थे और 2005 से 2007 आ गया है, आप 2 साल से तबलीगी है। मेरे इलाके वाले मेरे साथी लोग जो अहले हदीस थे वो कहने लगे कि आप अभी भी शिर्क और बिदअत और खुराफात में ही चल रहे हैं। हमने कहा नहीं, हम तो दरगाह वगैरह छोड़ दिए हैं। तो बस ये समझते थे हम तबलीगी रह जब तक कि हाँ दरगाह वगैरह को नहीं मानते हैं और बस शिर्क छोड़ दिए हैं और मेहनत वाली जमात जो तबलीग वाली जमात है उसमें आ गए हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, कलमे की मेहनत कर रहे हैं, इसके अंदर कलमे को आम कर रहे हैं, लोगों के दरमियान में जाकर नमाजी बना रहे हैं लोगों को, जो शराबी है, जो जुआरी है, अच्छा काम कर रहे हैं। हम किस तरीके से हम कहने लगे। तो अहले हदीस भाइयों ने हमसे कहा कि देखिए क्या पढ़ाया जाता है तबलीगी जमात में, जब आप जाते हैं तो आपको चंद सूरे याद करा दिया जाता है, वजू का तरीका उसमें भी बहुत सारे सुन्नत की खिलाफ वर्जी है, और फिर नमाज का तरीका उसमें भी सुन्नत से बहुत दूर है वो नमाज जो नमाज पढ़ रहे हैं आप, और फिर जो है फज़ाइल अमाल का दर्स होता है और दीगर किताबें का दर्स होता है जो उलमाए देवबंद ने लिखे हैं। ये हुजूर अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा की फैज़ है कि 8 साल तक मैं आफ्ताब रहबर कलकत्तवी ख़ैमे नजदियत में रहकर मैं वहाँ था, लेकिन जब इनका करम हुआ तो मैं कहाँ से कहाँ चला आया। और मैंने जब अल्लामा अरशदुल क़ादरी का मुझ पे फैज़ बरसा तो देवबंदियत से तौबा करके हमने मसलक आला हजरत का दामन को थाम लिया। ये आफ्ताब रहबर पहले देवबंदी था, अरशदुल क़ादरी का फैज़ बरसा तो वो बरेलवी हो गया, लेकिन फिर बरेलवी से वो देवबंदी कैसे बना उसी की ज़बानी सुन लीजिए। मसलके हक को यानी मसलके देवबंद को छोड़ करके मैं बरेलवी मसलक को इख्तियार किया था 2022 13 मार्च को, और एक तरफ से ये भी बहुत अच्छा हुआ, इसलिए ये दिल से ये बात कर रहा हूं मैं। अच्छा इसलिए हुआ कि पता नहीं क्या मेरे दिल में कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद पता नहीं वहां क्या है, और क्या है ये जाकर के जब मैंने वहां देखा, और एक अल्लाह के सामने ये जो आफ्ताब रहबर का सर झुकता था, थोड़ा सा मैं अल्लाह से हटा तो ये सर मजार पे झुकने पे मजबूर हो गया। अल्लाह, ये सर मजारों की चादर पे झुकने पे मजबूर हुआ, चूमने पे मजबूर हुआ, और वहां के जो पीर हैं उनकी उस पीर की पैर को भी मैंने चूमा है। लेकिन जब जब ये अमल मुझसे होता था, खुदा की कसम दिल में एक ऐसी कैफियत पैदा होती थी, एक आवाज आती थी कि आफ्ताब रहबर मैं तमाम अहले हदीस वालों से एक सवाल ये क्या करता करती हूं। वो सवाल ये कि बुखारी शरीफ ही मुकम्मल दीन है, मुकम्मल इस्लाम है? अगर आप हाँ कहते हो तो काफिर हो जाओगे, अगर नहीं तो फिर मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई, इब्न माजा, इनमें जो अहादीस मौजूद है कि रफ़े यदैन नहीं करनी, बुलंद आवाज़ से आमीन नहीं कहनी, सूरह फातिहा की तिलावत नहीं करनी, तो इन अहादीस का आप क्या करोगे? बताना मुझे आप कमेंट करके। रही बात कि पहले मैं देवबंदी था, बुखारी पढ़ के अहले हदीस बन गया, पहले मैं बरेलवी था, बुखारी पढ़ के अहले हदीस या देवबंदी बन गया,
तो आपसे मेरा एक सवाल है कि कुरान खुद कहता है कि युदिल्लु बिही कसीरुं व यहदी बिही कसीरा, बहुत सारे लोग कुरान पढ़ के हिदायत भी पा गए और बहुत सारे लोग गुमराह भी हो गए। इसमें कुरान का कसूर क्या है? पढ़ने वाले की जैसी नीयत होती है वैसे ही उसको फैज मिलता है। तुम नमाज पर तो गौर कर लिए कि आमीन बुलंद आवाज से कहनी चाहिए, रफ़े यदैन करनी चाहिए, इमाम के पीछे सूरह फातिहा की तिलावत करनी चाहिए। क्या कभी तुमने इस पे गौर नहीं किया कि तुम्हारे जिन उलमा ने ये लिखा है कि हुजूर की माँ काफिरा थी माज़ल्ला, हुजूर के वालिदैन काफिर थे माज़ल्ला? क्या हुजूर के वालिदैन काफिर हैं? तुम इस तरह का अकीदा रखते हो? तुम्हारे उलमा ने जो अपनी किताबों में लिखा है, खुद तकरीर में बयान किया है कि वक्त आएगा तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को भी गिरा देंगे, कब्र अनवर को भी ढा देंगे। तुम्हारे बाप दादाओं ने सहाबाए किराम की कब्रों पर बुलडोजर चला के वहां होटल बनाया है। क्या तुम्हारा यही ईमान है, यही अकीदा है? कैसे हम तुम्हारे ईमान को, अकीदों को सही मानेंगे? देखो, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तुम्हें याद होगी कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, यानी सब मुसलमान बन के ही पैदा होता है। फिर कोई यहूदी, कोई नसरानी, कोई ईसाई, कोई हिंदू, कोई सिख क्यों बन जाते हैं? जैसी सोहबत में रहते हैं, सोहबत की वजह से वो बन जाते होंगे, अपने बाप दादाओं की वजह से बन जाते होंगे। तो तुम पहले तो थे बरेलवी, तुम पहले थे बरेलवी, बाद में तुम अहले हदीस बन गए, तो जरूर कुछ ना कुछ तुमने गड़बड़ी क्यों होगी, तुम्हारे अंदर कोई खामी होगी, जरूर तुमने कोई घोटाला किया होगा, कोई गड़बड़ी की होगी कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों की जमात से निकाल के तुम्हें बेईमानों की जमात में दाखिल कर दिया। ये कलकत्तवी रहबर ये कह रहा था, पहले मैं देवबंदी था, अरशदुल कादरी का फैज़ बरसा तो फिर बरेलवी जमात में आ गया, और बरेलवी जमात में जब गया तो अच्छा ही हुआ। वहां जाके मैंने देखा कि लोग कब्रों को पूजते हैं, चादरों को चूमते हैं। अबे नालायक, तुमने कभी देखा कि बरेलवियों को कब्र की पूजा करते हुए? बरेलवी कब्र की पूजा नहीं करते हैं, बरेलवी कब्र के पास जाकर खड़े होकर के अदब से सलाम करते हैं, अकीदत का इजहार करते हैं। कब्र के सामने खड़े होना अगर ये पूजना है तो उमर फारूक आजम हुजूर की कब्र के सामने खड़े होकर क्या करते थे? अबू बकर सिद्दीक खड़े होकर क्या करते थे? इमाम शाफी, इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र के पास खड़े होकर क्या करते थे? पूजा करते थे। मुझे बताना। और तुम कहते हो कि फिर बाद में वहां मैंने खुराफात देखे तो उलमाए हक देवबंदी जमात में दाखिल हो गया। ठीक, खुलासा कलाम ये कि जो बरेलवियत को छोड़ के अहले हदीस होते हैं तो होने दो, देवबंदी होते होने दो, फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसलिए कि उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी ही हक है, सच है, और यही जमात अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चली आ रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये कायम रहेगी। जिस दिन ये जमात खत्म हो गई उस दिन क़यामत जरूर आएगी।